Good morning students, how are you all? In this video, we are going to learn a Marigold, a textbook in English for class 5. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिप वैन विंकल जो स्टोरी है यूनिट नंबर 5 में वो पढ़ी थी। आज हम करेंगे उसके बाद जो एक्टिविटीज़ दी गई है वो Fun with new words. Let's see. First one. Circle the correct meaning of the given words. You may need to use the dictionary. आप डिक्शनरी यूज़ कर भी ये जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग आपको ट्रू देखने चलिए। आइडल अवे उसका मतलब क्या होता है? यस वेस्टेड तो क्या करेंगे यहाँ पर राउंड। देन कंस्टेंट का मीनिंग होता है स्टेडी तो यहाँ पर राउंड करेंगे। देन कंपेनियन का मीनिंग होता है पार्टनर तो यहाँ से राउंड। देन रियलाइज का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड तो यहाँ पर राउंड। देन डिसेंट का मीनिंग होता है टू मूव डाउन। देन बैरल का मीनिंग होता है अ वुडन कंटेनर। देन कंटेंट्स का मीनिंग होता है द इंग्रेडिएंट्स। Number 2. Match the words in the box with their meanings. You may take the help of a dictionary. Let's see match the words. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं वो यहाँ पर मैच करने उसके ट्रू मीनिंग के साथ। फर्स्ट वन नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन उसका मीनिंग क्या होता है? नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन का मीनिंग होता है फुट हिल्स। विथ ग्रे हेयर मीन्स ग्रिजल्ड। टू रब जेंटली यानी कि स्ट्रोक्ड। To be very surprised, astonished. No to you means familiar. Then let's read. Say whether the following sentences are true or false. हमें यहाँ पर true or false करने हैं। Rip was kind to children. It's true. Rip was a hard-working man. It's false क्योंकि वो बहुत आलसी। The short old Man on the mountain was his constant companion. No, it was false. उसका companion था dog. Rip helped to the old man on the mountain because he wanted to have a drink from the barrel. It's false. Then fifth one. Rip was away for the 20 years because he was asleep on the mountains. Yes, it's true. The drink from the barrel made him fall asleep for 20 years. Yes, जब उसने वो drink पी उसके बाद ही वो सो गया। Last, nobody recognized Rip when he come back because he had reached the wrong village. No, it's false. Now second, complete the following sentences. Rip's village was situated at the foothills of the Castrol Hill. Then the children of the village loved him because he played with them. The dog named Wolf was his constant companion. The villagers stared at him because no one knew him. The old woman who recognized Rip was his old neighbor. Now let's write work in groups of 4. What were the strange thing about the man on the mountains? उसके बारे में strange thing क्या थे जो कुछ अजीब था? First, they all were dressed in the same way. उन सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे। They had beards of various shapes and colors. उनकी beards कैसी थी? अलग अलग शेप की और कलर की। They were serious even while playing games. वो गेम्स खेल के समय भी वो सीरियस थे। And they were very short heighted. उनकी हाइट बहुत छोटी। Second, what kind of a man was Rip Van Winkle? वो किस तरह का मैन था? आदमी था। तो देखिए he was a काइंड नेबर वो एक काइंड नेबर था। देन ही वॉज वेरी लेजी वो बहुत आलसी था। ही लाइक टू प्ले विथ चिल्ड्रन उसको चिल्ड्रंस के बच्चों के साथ खेलना पसंद था। ही वॉज अ गुड नेचर्ड फेलो वो अच्छा बिहेव करता वो उसका नेचर गुड था। देन सेकंड वन हमारी जो एक्टिविटी है वोकेबुलरी बिल्डिंग। पिक आउट द नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द स्टोरी। स्टोरी में कौन कौन सी गेम थी जो मेंशन की गई थी? देखिए फ्लाइंग काइट्स यस। Chess, no. 9 pins, yes. Then mountain climbing, yes आप लिख सकते हैं। Shooting marbles, yes. Then shooting थी, no. Skipping, hopping, नहीं ये सारी नहीं थी। सिर्फ यहाँ पर 4 जो गेम्स थी वो थी जो इस स्टोरी में मेंशन है। So write down here. Then sometimes we join 2 words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everybody liked him.
यहाँ पर दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड बना, जैसे गुड नेचर। हियर आर सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज देम टू कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ। यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट करना है, उसके लिए जो वर्ड्स दिए गए हैं जो कौन से हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो दो वर्ड्स को मिलकर बनते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। मिसिस दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन क्लॉथ शॉप। Yesterday an old looking woman walked into the shop. She was wearing high-heeled shoes. A sweet-looking dog was with her. I want a long-sleeve shirt for my dog, please, she said. For young dog? asked Mrs. Das, open-mouthed in surprise. वो पूछती है क्या एक डॉग के लिए शर्ट चाहिए? Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. मैं चाहती हूँ कि वो मेरी नेक्स्ट पार्टी में बहुत अच्छा यानी कि वेल ड्रेस हो, बहुत अच्छा लगे। 3 साइलेंट लेटर्स। व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स? जैसे कि नी, नाइफ, नॉट, नो। यहाँ पर साइलेंट लेटर को क्या है? के इज साइलेंट, देन हियर इज नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रीट। साइलेंट लेटर इज GH. ऑनेस्ट, ऑनर, ओवर एंड हेयर। Silent letter is H. Try and make more silent words. यहाँ पर और ज़्यादा silent words देखने हैं, जैसे कि नेट, पिटोंग, चौक, विसल। उसी तरह से नेश, नो, वेक, मोर, टॉक, वॉक, बस्टल, हशल। Now read the 2 paragraphs given below. My mother is always awake before anyone else in the family. I usually wake up after 6 o'clock. My mother, मेरी मदर यानी कि मेरी जो मम्मी है वो सुबह सबसे पहले उठ जाती है। Awake and I usually wake up after 6 o'clock. मैं 6 बजे के बाद उठती हूँ। I roll around lazily for a few minutes. मैं ऐसे ही सोते रहती हूँ 5 मिनट थोड़ी देर के लिए। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस फॉर स्कूल। उसके बाद मैं तैयार होती हूँ स्कूल जाने के लिए। एट बेड टाइम आई रीड अ स्टोरी बुक। मैं सोते समय एक स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली। जब मैं थक जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, जल्दी से जाकर सो जाती हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल। मुझे नहीं पता कि मैं कभी भी सो जाती हूँ रात को। नाउ फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर आपको इन सारे वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं। अवेक यानी कि स्लीप, अवेक यानी उठता, स्लीप यानी सोना, वेकअप यानी उठना, गो टू स्लीप यानी कि सोने जाना, गेट अप यानी उठना, लाई डाउन यानी कि सोना, बैठना, लेजिली यानी कि लेजिली, आलसी, क्विकली यानी कि जल्दी से। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन प्रीवियस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे लेट्स सी। डेस्क एंड डेस्क, गेट अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। वेक अप एंड गेट अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। शू, द बेबी इज स्लीप, डोंट मेक अ साउंड और शी विल वेक अप। बच्ची जो है सो रही है, आवाज़ मत करना वरना वो उठ जाएगी। आर यू स्टिल अवेक, तुम अभी भी जाग रहे हो। यू शुड बी अस्लीप नाउ, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। और यू विल बी नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, अगर तुम अभी नहीं सोए तुम सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठ पाओगे। नाउ लेट्स टॉक। Lots of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are the neighbor who greets Rip after 20 years. One student should act as Rip. Tell Rip about all that had happened in the village after he left. कि जब रिप वहाँ से 20 साल के लिए चला गया था, आप अभी इमेजिन करिए कि आप उसके नेबर हैं और वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, वो आपको बोलना है एक्ट कर कर। Now talk about what happened to his family, to his friends, to the other villagers, to the children he played with, the changes in the village, etc. Your teacher will guide you. चलिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि उसकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो विलेजर्स थे और फिर जिस बच्चों के साथ खेल रहा था उसके साथ क्या क्या हुआ होगा वो आपको इमेजिन कर कर देखना होगा। यू मस्ट स्टार्ट दिस वे। गेस व्हाट हैपन ऑन द डे व्हेन यू लेफ्ट, जब तुम
यहाँ से गए उस दिन क्या हुआ, व्हेन यू डिडंट कम होम, जब तुम घर पर नहीं आए, इन द इवनिंग, शाम को, योर वाइफ, आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ, वो बहुत वरीड थी। आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ रीड द स्पीच बबल, हु वर्क टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट देम इन ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो बबल्स में लिखा है उसको आपको क्या करना है, नंबर्स देने हैं। सिर्फ यहाँ पर अनु जो है, आई डोंट यूजुअली वर्क टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल, यहाँ पर क्या हुआ, यूजुअली। देन जॉन कहता है, आई नेवर वर्क टू स्कूल, आई लिव वेरी फार अवे। देन अर्जुन, आई ऑलवेज वर्क टू स्कूल, आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल। फिर मिनी कहती है, आई समटाइम्स वर्क टू स्कूल, एट द टाइम्स आई टेक द बस ऑल्सो। देन नजीम कहता है, आई यूजुअली वर्क टू स्कूल, इट इज़ अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे। देखिए सबसे क्लोज क्या है, ऑलवेज। सो आई ऑलवेज वर्क टू स्कूल, आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल। सबसे पहले आएगा ऑलवेज, तो क्या होगा, ये फर्स्ट। और सेकंड है, आई यूजुअली वर्क टू स्कूल, इट इज़ अ नाइस वे टू स्टार्ट द डे, ये जो है सेकंड आएगा। एंड थर्ड आएगा, आई समटाइम्स वॉक टू स्कूल, एट टाइम्स आई टेक द बस, मैं कभी कभार ही वॉक कर आता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बस भी ले लेता हूँ। एंड फोर्थ, आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं हमेशा ही स्कूल से नहीं बस वॉक कर नहीं आता। आई ऑफन गो बाय साइकिल, मैं हमेशा ही साइकिल से जाता हूँ। एंड फिफ्थ वन, आई नेवर वॉक टू स्कूल, कि मैं कभी भी चलकर स्कूल नहीं जाता। आई लिव वेरी फार अवे, मैं बहुत दूर रहता हूँ इसीलिए। नाउ लेट्स सी क्रिएटिव राइटिंग। Write about yourself using the following expressions. Do you play in the park? Go to bed late? Fuzz over food? Study hard, etc. आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ कर और क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली एंड रेयरली। ये सब वर्ड्स यूज़ कर हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। Then make sentences like always. I always go to bed on time. I rarely beat anyone. I often miss my school bus. I frequently call my mother. I usually finish my homework on time. Second, use the following clues to complete the following exercise. These are the cues. Play, stop, buy, learn, see, meet, learn, be, eat, go, travel, start, read and visit. Write 3 new things you have done in the last 3 years. आपने last 3 years में जो कुछ भी करा है यहाँ पर लिखना होगा। For example, I have started learning English. I have visited London. I have started reading book. आप अपनी तरह से आंसर लिख सकते हैं। देन सेकंड, राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3। आपको वो 3 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आप लास्ट 3 इयर्स में नहीं किए हैं। जैसे कि आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट ईटन चिकन, आई हैव नॉट मेट माई डॉग। सो मेक सेंटेंसेस